is a bad habit, eating, drinking, and your camera is also switched on, if it happens, then it is not good for the online teaching learning process. Dress appropriately. As you know, you are in the front of the camera. Whatever you wear, it is known to your teacher and other students, so you have to dress properly. Wear something comfortable but presentable, because you are in front of the camera and public and other students are watching to you. Mute your mic. Mute your mic when you are not talking. When you are not asking any question, be careful. Be careful, your mic should be switched off. Raise your hand. Raise your hand to talk or to ask teacher for help. If you have any doubt, you have some queries, the teacher will definitely help you, but you have to indicate by your hands. Enjoy learning. Let's enjoy this new kind of learning. As you know, COVID-19 situation, only one option is there: online learning. There is no another option. Teacher cannot visit your home, you cannot take tuitions, coachings, you cannot go to school, so this is the only means you can learn. And you have to enjoy. This is a modern teaching learning process, so you have to enjoy. You are learning with comfort in your home. Okay. Crop production and management, class 8 notes. These are the notes I want to give you. These are very short definition which is helpful for your examination, and in short period of time you can learn a lot. First of all, I am going to cover crop. Plants of the same kind that are grown and cultivated as a source of food in a large cultivable land is called crop. So these two lines explain about the crop. What is crop? You can define by these two sentences. As you know, students, I teach in Hindi and English both the way, so that you can understand very well. And students who are weak in English, so they can also understand in easy way, and they can ask the questions. So what is the crop? Crop means फसल, इसको हिंदी में फसल बोलते हैं. You know, food is very important part of our life. Without food we can't live. So crops are essential. Okay. So what are the crops? Same types of the plants. Same types of the plants are cultivated in the field. जो खेत है वहाँ पर एक ही तरह के जब पौधे उगाए जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में खेतों में, तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं. कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? जैसे कि आपको पता है, आप दिन में क्या खाते हैं? चावल तो खाते ही होंगे, रोटी तो खाते ही होंगे. तो जो वीट और राइस का जो क्रॉप है वो बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, क्योंकि हम चावल और रोटी के बिना तो नहीं रह सकते. यह हमारा प्राइमरी फूड है, तो इसको हम क्रॉप बोलते हैं. और यही प्राइमरी क्रॉप है, चावल और गेहूं. ठीक है. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. अब क्रॉप्स कितना प्रकार के होती हैं? क्रॉप्स which are grown in the winter season from October to March are called rabi crops. कुछ फसलों के लिए विंटर सीजन मतलब ठंड का समय अच्छा होता है. ये फसलें ठंड में ही उगाई जा सकती हैं, क्योंकि इनके जो प्लांट्स होते हैं वो कम टेम्परेचर में ही इनको उगने में मदद होती है. तो इस क्रॉप्स को जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, इनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स. और इनके लिए सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर और मार्च का समय. अक्टूबर से लेकर मार्च तक का समय. द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. कुछ क्रॉप्स जो है रेनी सीजन में ही होती हैं और उनको उगाया जा सकता है. इस तरह की क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. और ये जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के महीने में उगाई जाती है.
आप जानते हो कि जुलाई का महीना आ ही रहा है, मानसून आ ही रहा है, तो इस समय जो है खरीफ क्रॉप्स के लिए ये सबसे बेहतर समय होता है। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स of the crop. This is carried out using various process and tools. कोई भी फसल उगाने के लिए हमें सॉइल का प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। कल्टीवेशन के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए सबसे पहली जो चीज़ है जो खेतों में की जाती है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। The soil is prepared for sowing the seed of the crop. सॉइल का प्रिपरेशन करना क्यों जरूरी है? आप जानते हो कि कोई भी पौधा लगाने के लिए हमें उसके बीज को जमीन के अंदर गाड़ना होता है, ठीक है। तो ये बीज आप जमीन के अंदर कैसे गाड़ सकते हैं जबकि आपके पास मिट्टी जो है सॉफ्ट हो? इसके लिए मिट्टी की खुदाई करना, उसको नरम बनाना बहुत आवश्यक है, तभी आप जमीन के अंदर बीजों को डाल सकते हैं। This is carried out using various processes and tools. अब खेत की ज़मीन को नरम बनाने के लिए हमें कई प्रकार के टूल्स या औजार की जरूरत पड़ती है जिससे खेतों में खुदाई की जाती है और मिट्टी को नरम बनाया जाता है। टिलिंग और प्लविंग। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or ploughing and is done by using a plough. अब खेत की मिट्टी को अगर हमें नरम बनाना है, लूज करना है और इसको टर्न करना है, पलटना है, मिट्टी के जो नीचे की परत है उसको ऊपर लाना है और ऊपर की परत जो है उसको नीचे ले जाना है जिससे कि मिट्टी नरम हो जाए और मिट्टी में नमी भी आ जाए और जिससे कि मिट्टी में पानी आसानी से जा सके, एयर आसानी से जा सके। तो ऐसा करने के लिए हमें एक औजार या टूल की आवश्यकता पड़ती है ना। इसको क्या बोलते हैं? प्लग। और इस जो प्लग करने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं प्लगिंग। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे टिलिंग और प्लगिंग क्या है। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। टिलिंग और प्लगिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लविंग एंड इज डन बाय यूजिंग प्लव। तो खेत की मिट्टी को लूज करने और उसको टर्न करने की जो प्रक्रिया है इसको आप क्या बोलते हैं? टिलिंग बोलते हैं। इसको आप प्लविंग भी बोल सकते हैं। और टिलिंग या प्लविंग करने के लिए आपको एक टूल की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं प्लव। A plough is a device that is used by farmers for different purposes such as adding of fertilizers, tilling and loosening of the soil. ये जो प्लव है केवल मिट्टी को लूज और नरम करने के ही काम में नहीं आता, बल्कि इसकी सहायता से आप इसमें फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हो, टिलिंग तो कर ही सकते हो और साथ में मिट्टी को या सॉइल को लूज भी कर सकते हो, नरम बना सकते हो। It is also used for adding fertilizers to the soil, removing weeds, scraping of soil. और ये जो है और कई अन्य काम करने में मदद करता है जैसे फर्टिलाइजर्स को ऐड करना, वीड्स को अलग करना, स्क्रैपिंग करना सॉइल का, इन सब काम करने के लिए प्लव हमारी बहुत मदद करता है। द प्लव स्पेयर इज द ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। ये प्लग स्पेयर जो है किसका बना होता है? आयरन का बना होता है, क्योंकि मिट्टी बहुत हार्ड होती है और उसको नरम करने के लिए और खुदाई करने के लिए इसके लिए एक हमें लोहे जैसे सख्त धातु की औजार की जरूरत पड़ती है। अ प्लग शाफ्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लग विच इज मेड यूजिंग अ लॉग ऑफ वुड। प्लग शाफ्ट किसका बना होता है? ये वुड का बना होता है, ठीक है। The another end of the shaft has a handle. इस शाफ्ट का जो दूसरा सिरा होता है उसमें हैंडल होता है। The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. अब इस प्लग को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए
हम बुल्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो प्लग का ये दूसरा जो सिरा है उसको हम बुल्स नेक से अटैच कर देते हैं, जो उसको प्लग को आगे की तरफ खींचता है और मिट्टी नरम होती है। A wooden traditional plug can be operated by a pair of an ox and a man. प्लविंग करने के लिए हमें ऑक्स की जरूरत पड़ती है, जो कि इसको आगे की तरफ खींचता है, और पीछे इसका प्लग का दूसरा जो सिरा है वो एक आदमी पकड़ के रहता है, उस पर फोर्स लगाता है जिससे कि जमीन की खुदाई होती। Nowadays these wooden plugs are being replaced by the iron plugs. पहले जो ये प्लग्स होते थे वुड के बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे, लेकिन आजकल इसको आयरन का बनाया जा रहा है। आयरन के प्लग्स जो है ज़्यादा आसानी से और अच्छी तरह से कार्य करते हैं। तो आप देख लीजिए, अ ट्रेडिशनल वुडन प्लग, ये ट्रेडिशनल वुडन प्लग है। ये सिरा जो है ज़मीन की खुदाई करता है। ये किसान अपने हाथ से पकड़ा होता है और फोर्स लगाता है, जिससे ज़मीन आसानी से उसको खुदाई की जाती है, सॉइल को नरम किया जाता है। और ये जो सिरा है इसका एक सिरा जो है ऑक्स के नेक पर रख दिया जाता है, जो कि उसको खींचता है। इस प्रकार से खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी उपकरण है। इसके बिना कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछने का तरीका ये है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, टाइप करके भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और जब हम ऑनलाइन क्लास में होंगे तो आप फेस टू फेस अपनी क्यूरी जो है पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने ऑनलाइन क्लास रूम के रूल्स बता दिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं अगले टॉपिक पढ़ाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको कुछ दिनों के पहले ही मिल जाएगा। और इस चैनल को लाइक करना है, जिससे कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो घर पर ही आसानी से बैठकर पढ़ाई कर सकें और अपने दिन का सही उपयोग कर सकें। आप सभी का धन्यवाद।